حبیب صاحب، یہ بھی الزام ہے کہ حریت کے جو لیڈران تھے وہ لڑکوں کو 500 روپیہ دے کر اور ان سے پتھر بازی کرواتے تھے، صحیح ہے؟ 2019 کے بعد مجھے نہیں لگتا ہے اتنے لوگ مارے گئے. 2019 کے بعد مجھے نہیں لگ رہا ہے اتنے لوگ مارے گئے جتنے لوگ 2008 کے بعد مارے گئے. 2008 میں، 2009 میں، 2010 میں، 2016 میں. آپ حریت میں تھے پہلے. حریت کا مقصد کیا تھا 2019 سے پہلے؟ حریت اس کے بعد ختم ہو چکی. حریت کا جو کیلنڈر نکلتا تھا، ہفتے میں ایک دن کھلا رہتا تھا. سید علی شاہ گیلانی صاحب جو وہ کالز دیتے رہتے تھے. مین موضوع کیا تھا حریت؟ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی انسان 500 کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگائے یا اپنی زندگی کا سودا کرے 500 کے لیے. آج کے نوجوان، ہمارے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. آج ہمارے بچوں پہ ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. ایک الزام تھا، لیکن ایک ایڈمنسٹریشن کی جو ناکامی تھی، وہ میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریشن کی ناکامی تھی. حریت کا جو ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا، ان کا جو آئین تھا، وہ کوئی بندوق کا آئین نہیں تھا، وہ کوئی غیر جمہوری آئین نہیں تھا. وہ جمہوری طریقے سے اپنی بات منوانا چاہتے تھے. دلی اور دل کی دوریاں ابھی بھی برقرار ہیں. جب تک آپ دلوں کو نہیں جیتیں گے، جب تک آپ دلوں کو نہیں جیتیں گے، تب تک مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی اتنا بڑا کمال انہوں نے کیا. ابھی بہت کچھ کرنا ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ بار بار کا بیان آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا حل ڈھونڈنا ہے، جموں کشمیر کا حل ڈھونڈنا ہے تو پاکستان سے بات چیت کر لیں. آپ اس بارے میں کیا استثنا دیتے ہیں؟ میری رائے بھی یہی ہے. دیکھو، میں نے آپ کو کہا کہ آنجانی پنڈت جواہر لال نہرو جی اس ٹائم جب یہاں پہ جنگ 2-3 جنگیں یہاں پہ ہوئی ہیں، تو اس ٹائم بھی ایک ہمارے ساتھ کچھ جو وعدے ہوئے ہیں، ان وعدوں کا وفا ابھی تک نہیں ہوا. اگر یہ بات میں کہتا ہوں، فاروق صاحب ہمارے بزرگ رہنما ہیں، اگر انہوں نے کہا بات کرنی چاہیے، مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی حرج ہے، کرنی چاہیے. یہاں کا جو مسئلہ تھا وہ یو این او میں لیا. یو این او میں ایک کیس درج ہوا. اس کیس میں کیا ہے، 18 ریفرنڈم وہاں پہ قراردادیں، 18 قراردادیں ہیں. ان میں کیا ہے، کشمیر جو ہے، جموں کشمیر، لداخ اور جو گلگت بلتستان جس کو ہم پی او کی کہہ رہے ہیں، یہ سارا خطہ جو ہے اس میں ریفرنڈم کیا جائے. یہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. دیٹ از اٹ. میجورٹی یہاں پر لوگوں کی ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک، لیکن یہ وعدے جو ہیں، جو آنجہانی پنڈت جواہر لال نہرو جی نے ہمارے ساتھ کیے تھے، یہ وعدے پورے نہیں ہوئے. جب یہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد حریت کانفرنس کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا. وہ سیاسی سطح پہ اسی چیز کی نمائندگی کرتے. بہت سالوں کے بعد یہاں پر چناؤ ہوئے، لوک سبھا چناؤ ہوئے یہاں پر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ لوگ باہر نکلے، ووٹ ڈالا. آپ نے خود جو ہے ووٹ کاسٹ کیا. تو اس منظر کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جو منظر پہلے نہیں ہوتا تھا، یہاں ووٹنگ کے سلسلے میں کال دی جاتی تھی، بائیکاٹس ہوا کرتے تھے، تو کس طرح سے؟ وہ کریڈٹ بی جے پی کو جائے گا، بالکل جاتا ہے. اگر بی جے پی لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، لوگوں کا اچھا کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، دل کے بھی، ہمارے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال کرتے ہیں کشمیر پرائڈ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر. 5 اگست 2019 کو جو ہے دھارا 370 کا خاتمہ ہوا اور ایک ریاست کو 2 یوٹیز میں تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد یہاں اب تک جو ہے 5 سال ہونے کو ہے، اور ان 5 سالوں میں کیا کچھ گزرا. واقعی میں جو 2019 سے پہلے سچویشن بنی ہوئی تھی وہ واقعی بدل چکی ہے. واقعی میں یہاں پر جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں روزگار ملا، یا جو حالات ہے وہ پٹریوں پر لوٹ آئی ہے. تو ان معاملوں پر آج گفتگو کرنا بہت ہی لازمی ہے. آج ذرا بات ہم کریں گے کہ 2019 سے پہلے کیا کچھ ہوتا تھا کشمیر کے اندر، وہ بھی دیکھا جائے گا. 2019 سے پہلے کیا اس طریقے کی سچویشن جو آج ہے کیا اس طریقے سے ہوتی رہتی تھی، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میرے ساتھ موجود ہے
एक्स हुर्रियत लीडरान और इस वक्त मौजूद है अपनी पार्टी में ने अपनी शमूलियत इख्तियार की है ज़फ़र हबीब साहब। सबसे पहले ज़फ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है अपने क़ीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया। ज़फ़र साहब सबसे पहले ज़रा 2019 से पहले की बात करते हैं। 2019 का और 2024 में क्या फ़र्क देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप यहाँ आए, मैं आपका मशकूर हूँ। आप अपने सामाइन तक हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं। असल में 2019 की बात 19 से पहले की बात आप सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा इससे पहले जाऊँगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के ख़त्ते का ताल्लुक़ है, ये 1947 से एक वो खत्ता रहा है जिसमें अमन के एतबार से खला रहा, जिसको हम कहेंगे कि अमन कभी भी नहीं रहा। 47 के बाद यहाँ पे एक पाकिस्तान की तरफ से एक हमला होता है और अक्टूबर में उस हमले के बाद सीज़ फायर होता है। इस कश्मीर के दो हिस्से होते हैं, एक पीओके और एक जम्मू कश्मीर। वो दर्द हम आज तक सहते आए हैं कि एक हिस्सा हमारा पीओके है, एक हिस्सा थोड़ा सा चाइना के पास है, और ये जो है जम्मू कश्मीर। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पर एक रूलिंग पार्टी जो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने बहुत अरसे तक यहाँ पे सत्ता में जो रहे हैं, जिसमें मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनका एक बड़ा रोल रहा है। और यहाँ पर महाराजा की गवर्नमेंट हुआ करती थी, यहाँ पे हरी सिंह की रूलिंग हुआ करती थी, वो यहाँ पे रूल करते थे। और वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ जब मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी काविशें और अपनी मेहनत और अपने लोगों में इतने मायानाज लीडर वो थे, और उन्होंने कश्मीर का एक, मैं ये कहूँगा, सियासी जो प्लेटफार्म है वो संभाला। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि लोगों की उमंगें, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों के मसले जो भी थे, उनमें एक कहीं ना कहीं उनमें एक खला रहा। हुकूमत और लोगों के बीच एक जो ब्रिज होता है वो ब्रिज कभी भी कामयाबी की तरह हमकिनार नहीं हुआ। तो वो जो सिचुएशन बनी रही, उस सिचुएशन में यहाँ पे कुछ एक सियासी डेवलपमेंट हो गई। सियासी डेवलपमेंट ये हुई कि बहुत सारे लोग जो सियासी बसीरत रखने वाले थे, जो कश्मीर का दर्द रखने वाले थे, जो कश्मीर को चाहते थे कि इसको वाकई जन्नत बनाया जाए, उन्होंने एक कोशिश की। उन्होंने सियासी सतह पे कश्मीर के मसले को हल करना चाहा और सियासी सतह पे लोगों के मसलों को हल करना चाहा। लोगों के दिलों में जो मसले थे वो हल करने चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो सेंटर गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से ऐसी लचक नहीं दिखाई गई कि वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो सके। तो लिहाजा उसमें शायद आपको याद होगा कि जब यहाँ पे एक दीनी जमात, एक बड़ी दीनी जमात इस्लामिया के नाम से थी, वो यहाँ पे इलेक्शन में आए और उनके साथ मरहूम लोन साहब थे, एक कद्दावर लीडर है अब्दुल गनी लोन साहब, आप जानते होंगे, वो इलेक्शन में आए। काजी निसार साहब है मरहूम, वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। या मरहूम सैयद अली गिलानी साहब, ये बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, जो भी स्टेट हो, जो भी मुल्क हो, जब तक एक सेहतमंद अपोजिशन ना हो, जहाँ भी एग्जिस्टिंग असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जब तक वहाँ पर एक सेहतमंद अपोजिशन ना हो, तब तक फैसले अच्छे नहीं होते। तो एक सेहतमंद अपोजिशन तैयार हो चुकी थी, जो मैंने आपको नाम गिनाए, ये नाम आए थे और ये इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया बाकायदगी के साथ। कश्मीर पुरअमन था, लेकिन दिलों में अमन नहीं था। वो दिलों में अमन दूर करने के लिए जो लोग आए थे मैदान में, जो लोग आए थे इलेक्शन लड़ने, उन लोगों के साथ उस वक्त
की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया। मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे मैं आज ये आपकी वसादत से बता देना चाहता हूँ कि 2019 के बाद मुझे नहीं लगता है उतने लोग मारे गए। 2019 के बाद मुझे नहीं लग रहा है उतने लोग मारे गए जितने लोग 2008 के बाद मारे गए। 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2016 में जितने लोग जम्मू कश्मीर के सड़कों पे जिन पे गोलियां बरसाई गई, जो निहत्ते थे, जो पुरअमन एहतजाज करते थे, जितने बच्चे हमारे मारे गए, जितने बच्चों पे पीएसए लगाया गया, जितने बच्चे जेलों में डाल दिए गए, 2019 के बाद उसमें फर्क आया। ये हम एडमिट करते हैं, उसमें बिल्कुल सुधार आया। जफ़र साहब, आप हुर्रियत में थे पहले, हुर्रियत का मकसद क्या था 2019 से पहले? हुर्रियत उसके बाद ख़त्म हो चुकी। हुर्रियत का जो कैलेंडर निकलता था, हफ्ते में एक दिन खुला रहता था, सैयद अली शाह गिलानी साहब जो वो कॉल्स देते रहते थे, मेन मौजू क्या था हुर्रियत का? देखिए, मैं वही पे आपको लाऊंगा। जब मैंने कहा यही लोग, चाहे सैयद अली शाह गिलानी, मरहूम सैयद अली शाह गिलानी साहब थे, मोहतरम अब्दुल गनी लोन साहब थे मरहूम, या ये जो साउथ के मीरवाइज थे हमारे काजी यासिर साहब थे, या सईद सलाहुद्दीन साहब जो आज उधर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में है, ये लोग जो थे यही लोग आए थे इलेक्शन लड़ने, और यही लोग आए थे असेंबली में जाने के लिए। लेकिन इन लोगों को वहाँ पे स्पेस नहीं मिली। इन लोगों को असेंबली के दरवाजे इन लोगों के लिए बंद किए गए। हालांकि मैं इसके साथ इत्तेफाक कम करता हूँ कि फिर यहाँ पे गन कल्चर यहाँ पे पैदा किया गया, या यहाँ पे फिर प्रमोट किया गया बंदूक को। करना नहीं चाहिए था। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, तो यहाँ पे बंदूक का जो दौर शुरू हुआ 90s से बंदूक का दौर जो शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अप्रोच किया यहाँ की क़यादत के साथ। क़यादत में सारी फहरिस्त सईद अली गिलानी साहब था, मरहूम मौलवी फारूक साहब थे, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब थे, बाकी लोग भी जिनके नाम मुझे याद नहीं थे। डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके साथ राबिता करके उनको हुर्रियत के लिए एक स्पेस प्लेटफार्म बना दिया कि आप जो जदोजहद कर रहे हैं वो आप सियासी सतह पे करो। ये किसी घर से किसी ने ज़ेर ज़मीन किसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नहीं बनाई थी। हमारे मीरवाइज साहब आज भी जिसको घर में बार बार नज़रबंद रखा जाता है, मीरवाइज साहब वो हुर्रियत के चेयरमैन रहे हैं। तो हुर्रियत का जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका जो आइन था, वो कोई बंदूक का आइन नहीं था, वो कोई गैर जमहूरी आइन नहीं था। वो जमहूरी तरीके से अपनी बात मनवाना चाहते थे कि 1947 में जब पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया, उसके बाद आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ का जो मसला था वो यूएनओ में लिया। यूएनओ में एक केस दर्ज हुआ। उस केस में क्या है, 18 रेफरेंडम वहाँ पे करारदादे, 18 करारदादे हैं। उनमें क्या है, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो गिलगित बल्तिस्तान जो जिसको हम पीओके कह रहे हैं, ये सारा खिता जो है इसमें रेफरेंडम किया जाए, यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ठीक, दैट इज इट। मेजॉरिटी यहाँ पर लोगों की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। ठीक, लेकिन ये वादे जो हैं, जो आंजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे साथ किए थे, ये वादे पूरे नहीं हुए। जब ये वादे पूरे नहीं हुए तो इसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को एक प्लेटफार्म दिया गया। वो सियासी सतह पे इसी चीज़ की नुमाइंदगी करते थे। ठीक, वो कोई दूसरा मुल्क नहीं मांगते थे, वो कोई दूसरे मुल्क के रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, वो जम्मू कश्मीर के, लेकिन कह रहे थे कि यहाँ पे रेफरेंडम कराया जाए। अब क्या हुआ, सियासी सतह पे इसमें बहुत सारी गलतियां हुई, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से भी हुई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हुई। जो इनको आपस में जो इनका ब्रिज था, जो ब्रिज
ठीक तरह से, जहाँ से 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे ट्रैफिक होता है, उसमें बहुत सारी जगहों पे जो चीज़ें हुई जिस वजह से यहाँ के हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए, लोगों का कत्ले आम होता गया। अगर हम कोई भी मुतालबा हमारा होगा, लेकिन लोगों को मरवाने का मुतालबा हमारा नहीं होना चाहिए। चाहे जिस भी मुल्क में आप जाओ, जहाँ भी आप देखो, सियासी सतह पे आपके पास स्काई इज़ द लिमिट। एक ज़माने में, एक वक्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा स्काई इज़ द लिमिट। आप देखो कश्मीरी लोगों, आपको क्या चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप हिंदुस्तान में रह के जो चाहो वो मिलेगा। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी, फिर यहाँ पे बंदूक जो रहा, चाहे वो पार का बंदूक रहा या इस पार का बंदूक रहा, उससे जिंदगियों का ज़िया होता रहा। बहुत सारे माँ बाप जो आज भी अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं, बहुत सारी हमारी माएँ जो अपने शौहरों के लिए तरस रही है, और वो ज़मीन उनका वो कब्रिस्तान उनके आबाद हो चुके हैं, वो कब्रिस्तानों में है। तो लिहाजा ये चीज़ें जो है, इस वजह से यहाँ पे जो कत्ले आम हुआ, और इसमें ज़्यादा जो 90 में जिन्होंने बंदूक उठाए, जितने 500 से ज़्यादा कब्रिस्तान आबाद हुए, उसके बाद 2008 जब यहाँ पे शाइन बोर्ड को ज़मीन दे दी गई, तो उस पर एक रेवोल्यूशन, जो मैं आपको कहूँगा, उसमें एक अवामी इनकलाब आया। लोगों ने कहा शायद हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। देखो, इसमें कुछ लोग होते हैं जो आपको मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे। अभी 5 अगस्त के बाद जो यहाँ की सिचुएशन बनी है, मैं आपको बताऊंगा, वही फौज 5 अगस्त से पहले थी जो आज 5 अगस्त के बाद है, वही पुलिस 5 अगस्त से पहले थी जो आज पुलिस है, वही थाने 5 अगस्त से पहले थे जो आज। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ यही था। आज क्यों अमन है? 5 अगस्त से पहले क्यों लोग मारे जाते थे? एक पहलू ये है, आज कहीं पे जुलूस नहीं निकलता है, उस पे गोलियां बरसाई जाती हैं। जामिया मस्जिद के बाहर लोग जमा होते थे, उन पे गोलियां बरसाई जाती थी। ठीक है, जमहूरी तौर हमारा हक है जुलूस निकालने का, हमें एहतिजाज करने का हक है। जो हमारे मगरबी ममालिक है, वहाँ पे भी जुलूस निकलते हैं, एहतिजाज होते हैं, उन पे पानी छिड़का जा रहा है, उन पे रंग छिड़का जा रहा है। जब इससे काम नहीं चलेगा तो जो साइड में आदमी है उसके टांग पे रबड़ गोली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कानून कुछ और है, यहाँ पे सीधे सरों में गोलियां मारी जाती थी। तो वो जो खला है, वो जो हालात हैं, वो चेंज हो चुके हैं। उसमें आज हम नहीं देखते हैं कि किसी को मारा जा रहा है। हबीब साहब, ये भी इल्ज़ाम है कि हुर्रियत के जो लीडरान थे वो लड़कों को 500 रुपया देकर और उनसे पत्थरबाजी करवाते थे, सही है? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इंसान 500 के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाए या अपनी ज़िंदगी का सौदा करे 500 के लिए। आज के नौजवान, हमारे ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँचा है, आज हमारे बच्चों पे हम कितने पैसे खर्च करते हैं। एक इल्ज़ाम था, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी थी, वो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी, जिसमें उतने सारे लोग रास्ते पे आते थे और उन्हें हम आराम से हैंडल कर सकते, उन पे हम पानी बरसा सकते थे, उन पे हम कलर वाला पानी, आंसू गैस बरसा सकते, हम गोलियां बरसा रहे थे। तो नतीजतन नफ़रतें बढ़ रही थी। नफ़रतों को कम करने के लिए एक तरीक़ाकार होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरी स्टेट देखती है। गवर्नमेंट के पास होता है। अगर गवर्नमेंट चाहिए, एक वक्त में इन्होंने 2000 में मेरे ख्याल से सीज़ फायर हुआ, जो यहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके साथ बात हुई, ठीक, उनके साथ दिल्ली ने बात की। तो कहने का मतलब ये है, जो भी बाशिंदा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, वो हिंदुस्तान का अपना बाशिंदा है। अगर वो हमारे नौजवान वो रास्ते से भटक गए हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको ट्रैक पे लाना। और मैं फिर यही कहूँगा कि आज भी
अगर आप देखें अभी भी दूरियां हैं, दिल्ली और दिल की दूरियां अभी भी बरकरार हैं। जब तक आप दिलों को नहीं जीतेंगे, जब तक आप दिलों को नहीं जीतेंगे, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इतना बड़ा कमाल उन्होंने किया। अभी बहुत कुछ करना है। 5 अगस्त पे जो हुआ, अगर स्पेशल स्टेटस एक स्टेट को है, भारत इस टाइम पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मुल्क, जमहूरी मुल्क है। और जमहूरियत की खूबसूरती क्या है? जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि हर किसी को अपनी अपनी राय रखने की आज़ादी है। अगर आपके मुल्क में किसी स्टेट का स्पेशल स्टेटस है, ये कोई जुर्म नहीं है, आपके शहरी है, आपका मुल्क है, आपके शहरी कहीं पे आबाद है, कोई जुर्म नहीं है। हबीब साहब, आपने कहा कि हम सारे जो हिंदुस्तानी से वाबस्ता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार का बयान आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि अगर कश्मीर का हल ढूंढना है, जम्मू कश्मीर का हल ढूंढना है तो पाकिस्तान से बातचीत कर ले। आप इस बारे में कैसे देखते हैं? मेरी राय भी यही है। देखो, मैंने आपको कहा कि आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम जब यहाँ पे जंग 2-3 जंगें यहाँ पे हुई है, तो उस टाइम भी एक हमारे साथ कुछ जो वादे हुए हैं, जो हमारे साथ वादे हुए हैं, उन वादों का वफा अभी तक नहीं हुआ। अगर ये बात मैं कहता हूँ, फारूक साहब हमारे बुजुर्ग है, बुजुर्ग रहनुमा है, अगर उन्होंने कहा बात करनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कोई हर्ज है, करनी चाहिए। क्योंकि ये बटा हुआ कश्मीर है, ये बटा हुआ जिस्म है। इस बटे हुए जिस्म को जब तक आप नहीं मिलाएंगे, जब तक इन लोगों की ख्वाहिशें और उमंगें आप पूरी नहीं करेंगे, तब तक कहाँ से अमन होगा? अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा तब तक। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि 5 अगस्त के बाद सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रही। आप मानते हैं कि जो 5 अगस्त को 2019 को 370 हटा, वो बिल्कुल ठीक था? मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। क्योंकि देखिए, 370 में रहा क्या था? अगर हम 370 देखते हैं, यहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर था, वो पहले ही हट चुका था। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतनी सारी, देखो यहाँ पे ज़मीनें जो हैं, यहाँ पे आराम से ज़मीनें हमने बेची है, हमने हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ ज़मीन दी है। तो इसमें उतनी सारी चीज़ें अभी मौजूद नहीं थी। जिस तरह कांग्रेस ने इसको रखा था, एक सेंटिमेंट लोगों का, एक लोगों के दिल की जो राय थी, हमारे पास 370 है, हम महफूज है। मैंने तभी आपको कहा 370 से पहले भी यहाँ फौज थी, 370 से यहाँ पहले यहाँ मिलिटेंसी हुई, एनकाउंटर होते थे, लोग मारे जाते थे। और अभी भी आप देखो, रिसेंटली जम्मू में देखो हालात कैसी है। आप 370 की बात करते हो, 370 ये लोगों के लिए था। अगर लोगों को इससे नुकसान होता था, आपने हटाया, बहुत अच्छा किया। अगर लोगों की दिलों की ख्वाहिशें इससे वाबस्ता थी, फिर क्यों जरूरत हटाना था? फिर तो कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कश्मीर आप ही का था। बीजेपी ये भी कहती है ना कि 370 के बाद अमन यहाँ पर आया, कोई गोली नहीं चली, कोई पत्थर नहीं चला, 370 ही मेन चीज़ था, जहाँ यहाँ के पुराने लीडरान जो है उसी का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है, अगर आज 370 भी होता, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन होती। अच्छा, आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन को गुड मैं कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी है, अभी जो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी है, मैं इसको बिल्कुल कह रहा हूँ, बहुत अच्छी है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है, एक गरीब इंसान, अभी वो लैंड फ्री एक स्कीम दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे क्या होता था, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, मैं डंके की चोट बातें बताता हूँ। हमारे जो एमएलएज होते थे, जो हमारे एमएलए बनते हैं, जो हमारी असेंबली बनती है, जो भी हमारा पॉलिटिक्स में होता था, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें ऐसे काले भेड़िए थे जो इस पॉलिटिक्स को अपने नफ़ा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उनको सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र में था, लोगों के लिए वो काम नहीं करते थे।
वो यहाँ तक गिर चुके थे कि किसी गरीब बाप का बेटा जब नौकरी ढूंढता था उससे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया जाता था, तब जाके उसको नौकरी मिलती थी। अगर कहीं पे ड्रेन बनानी हो तो वहां से पैसे बटोरते थे। अगर किसी ठेकेदार को ठेका देना होता था तो उससे कमीशन लेते थे। अगर कहीं पे गवर्नमेंट का कोई टेंडर निकलता था उससे कमीशन लिया करते थे। अब आज हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 5-5 मलरा जो फ्री दिया है, मेरे पास एदाद शुमार मौजूद है, मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, उन्होंने फरमाया कि 120 घरों को हमने फ्री लैंड दे दिया, 5 रुपया तक खर्चा नहीं हो। अच्छा, 5 रुपया उनका खर्चा नहीं हो। तो करप्शन फ्री, अगर करप्शन फ्री हमारा जम्मू कश्मीर होता है तो बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनका अजाला। इसका क्रेडिट आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी को नहीं दूंगा मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। ये सेंटर में बीजेपी है ना। देखिए, जो चीज अच्छी होगी वो बीजेपी करे या आरएसएस करे या जमात इस्लामिया करे या नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जो चीज जिसने अच्छा काम किया, लोगों के लिए किया, वो अच्छी है। और मैं कहूँगा अच्छे काम करने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रूहुल्लाह साहब हमारे एमपी रिसेंटली बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उनको, क्योंकि उन्होंने अच्छी बात की, लोगों की नुमाइंदगी की। अगर बीजेपी लोगों के लिए काम कर रही है, लोगों का अच्छा करना चाहती है, तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, दिल के भी हमारे भी। हबीब साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए यहाँ पर, और उसमें हमने देखा कि पहली मर्तबा लोग बाहर निकले, वोट डाला, आपने खुद जो है वोट कास्ट किया। तो उस मंज़र को आप किस तरीके से देखते हैं, जो मंज़र पहले नहीं होता था? यहाँ वोटिंग के सिलसिले में कॉल दी जाती थी, बाइकआउट्स हुआ करते थे, तो किस तरह हाँ, वो क्रेडिट बीजेपी को जाएगा, बिल्कुल जाता है। हम इस बारे में शर्म महसूस नहीं करने वाले हैं। हम ये बता देंगे कि क्रेडिट जाता है उनको। लोग निकले घरों से, लोगों ने वोट डाले, फिर किसने जीता, किसको वोट डाले, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन एक माहौल आपने तैयार किया है और वो सदियों दोहराया जाएगा। लेकिन उसमें, उस माहौल में भी आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोई माहौल खौफ के साए में आपको कायम नहीं करना है, बल्कि मोहब्बत और प्यार के साए में। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने उनकी वो तकरीर सुनी लाल किले से। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम कश्मीरियों को गले लगाना चाहते हैं। तो जब गले लगाने की बात आएगी तब तो सारे खौफ, सारी जो हमारी रुकावटें हैं, जो बैरिकेड्स हैं, वो तो सारे ख़त्म हो गए। तो लिहाजा उस चीज़ का खैर मकदम। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, असेंबली चुनावों की बातें हो रही है, कहा जाता है कि 30 सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। लद्दाख दूर है, लद्दाख अब इसके साथ नहीं है, 2 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, अब यहाँ पर चुनाव होंगे। क्या लगता है माहौल किस तरीके का है यहाँ पर, लोग क्या चाहते हैं, किस नुमाइंदे को लाना चाहते हैं? देखिए, वो तो तय होगा जब चुनाव होंगे। मैं पहले ये कहूँगा कि चुनाव होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, लेकिन चुनाव से पहले अगर स्टेटहुड मिले। देखिए, सभी लोग अवेयर नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते। अभी एक लीडर लोगों को मिसगाइड करेगा कि हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास, तो एक लोगों में वो नफरतें पैदा कर सकता है। इसके बरक्स दूसरा लीडर वो एक पॉजिटिव रोल करेगा, भाई ये चीज़ भी मिलेगी, ये चीज़ भी मिलेगी, ये चीज़, तो लोगों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जहाँ तक इलेक्शन होने का ताल्लुक है, इलेक्शन होना चाहिए, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, जो ग्रास रूट लेवल से लोगों के मसाइल असम्बली में ले जाएं और वहाँ पे उनका हल हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो भी नुमाइंदे जाएं, ये लोगों को भी ख्याल रखना है। अगर उनको मेरे ऊपर उंगली उठ रही है तो उनको चाहिए कि किसी भी लिहाज में इनको वोट नहीं देना, वोट उस पार्टी को देना, उस शख्स को देना जो लगे, जो जिस पे कॉन्फिडेंट हो कि ये कल गरीबों की नुमाइंदगी करेगा, लाचारों की, बेबसों की, जो लोग कोर्ट तक नहीं जाते हैं, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जो लोग तहसील ऑफिस की तक नहीं जा सकते, जो लोग गवर्नमेंट के ऑफिस तक नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास उतना
टाइम नहीं है, उनके पास उतने पैसे नहीं, किराया नहीं होता उनके पास, वो अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ कहाँ जाए। तो ऐसे नुमाइंदे हो जो उन तक पहुँचे और उनके जो मसाइल हैं वो फुलफिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हबीब साहब हमारे अपना कीमती वक्त देने के लिए। ज़फ़र हबीब साहब जो कि एक हुर्रियत लीडर थे, 2019 से पहले हुर्रियत में वाबस्ता थे। 2019 के बाद उन्होंने खुद फरमाया कि कश्मीर में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हुई, कश्मीर में सब कुछ ठीक हुआ है और अब कुछ गलत नहीं हो रहा है। और अब जहां चुनावों की बात हो रही है, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ दिनों में जो है जम्मू कश्मीर आ रही है और यहां पर स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल पार्टियों से गुफ्तगू करने जा रही है, वो कब होगा, क्या बयानबाजी होगी, किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि 5 अगस्त को 5 साल होने को है और क्या कुछ बदला कश्मीर में, वो बाज़ाब्ते तौर पर आपने खुद सुना। आप देखते रहिए कश्मीर प्राइड विद वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ शबरेज़ बशीर, श्रीनगर।